हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देयर आर थ्री ऑपरेशंस वी अप्लाइड ऑन द रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री रोज और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर वन, interchange of any two rows or two columns. Just suppose we have a matrix or we apply R1 change into R3. It means we are interchanging two rows R1 and R3. So we get another matrix, that is 107 minus 3 2 0 1 5 4. This is the one elementary transformation of a matrix. Their second elementary operation या elementary transformation. If we apply in this matrix in R1 plus k times of R, where k is any non-zero real number, non-zero real number, so we get another operation, yani we get another new matrix. This is the second elementary transformation, a second elementary operation of a matrix. Third operation is we can multiply or divide by any row or column of a matrix by a non-zero scalar k. That means suppose in the matrix I apply in R1 k R2 k R2, so I will multiply all the element of R2 by k. सेम ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं कॉलम से। जैसे ऑपरेशन हमने रो में अप्लाई किए, सेम ऑपरेशन हमने कॉलम में अप्लाई करने हैं। तो ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं और दीज आर द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन लगा के जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे सपोज हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं ए एंड बी कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय सी। तो वी गेट अनदर मैट्रिक्स सी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो any element of elementary row or column transformation AB can be obtained by subjecting pre multiplication of A or post multiplication of B, या pre factor of A or post factor of B to the same elementary row or column transformation. It means if we apply row transformation we will use this matrix, or we apply the column operation we use this matrix. So prefactor of C, that is A, is used for the row operations and post factor of C, that is B, is used for the column operation. Just suppose we have a problem 4 3 2 3 that is equal to the product of these two matrices
Now we have C is a matrix. It is the product of two matrix A and B. It says that use elementary column transformation in C2 minus 2C in the matrix equation. Because it is a matrix equation, apply C2 minus 2C. अब we are applying the column operation, तो हम किसको यूज करेंगे? पोस्ट फैक्टर को, यानी कि इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में एंड इस मैट्रिक्स करते हैं ऑपरेशन। C1 is the same, C2 minus 2C1, यानी कि this minus 2 times of this equal to this is the same, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे इन दिस पार्ट। और अगर यही क्वेश्चन हमें होता कि अप्लाई द रो इन केस ऑफ सी वी यूज आर, तो हम क्या करते? पोस्ट फैक्टर को एज इट इज रखते, अप्लाई करते किसमें? प्री फैक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में भी आए हैं जिसमें अभी ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वी हैव टू टाइप ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी कैन यूज एनी वन ऑफ दिस either by row transformation or column transformation. Suppose we have to find the inverse of a matrix by using row transformation. So then let we have a square matrix A. So I can write this matrix as IA for the row transformation. अगर कॉलम यूज करना है तो A into I, क्योंकि प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर। और ऑल्सो we know I equal to A inverse of, so we convert this matrix into I, तो जो I में कन्वर्ट होगा वो मैट्रिक्स क्या बनेगी? इनवर्स ऑफ A। कंडीशन इज द सेम, द डिटरमिनेंट of A should not be 0। We are taking here all the matrices whose determinant is not equal to 0, that is all non-singular matrices। Just suppose I am taking an example. It says that find the inverse of this matrix by using elementary row transformation. Elementary row transformation use करके हम इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स मिला। We know that A equal to IA. That means this A matrix can be written as, where I is the identity matrix, 1 0 0 for A as it is. We get equation, this A matrix is I into A. अब we have to find the inverse। तो क्या काम करना हमने? इस मैट्रिक्स को I में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद जो I कन्वर्जन होके आएगा वो क्या कहलाएगा? A inverse of this matrix। Because we are using row transformation, इसलिए हमने इसको प्री फैक्टर में रखा है। अगर कॉलम करते तो हम इसे को आगे रख लेते और हमारे पास पोस्ट फैक्टर ही बचा। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 1 0। तो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज 1, तो हमको क्या करना है? सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना है और यूज करना है ओनली रो। तो हमने अप्लाई किया इन R2 minus 2R। First row as it is, 2 minus 2 0, 7 minus 6 1। First row as it is, minus 2 1। Next work is to make it 1, ये ऑलरेडी आ गया। अब ये 0 बनाना है। अब हमने यूज किया इन R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R।
तो ये मैट्रिक्स तो बन गया हमारे पास आइडेंटिटी। 1 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस दैट इज 7। तो A इनवर्स इज 7 minus 2 minus 3. This is the A inverse because we get I equal to A inverse into A. Let us take another example, that is of 3-over matrix. Let A be a matrix (1 minus 1 0), 2 3 minus 2. The third column is -2 0 1. It says that find the inverse of this matrix by using elementary row transform. We have the matrix equation A equal to IA. That is equal to I, identity matrix of order 3 और A. क्योंकि हमें रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं इसलिए आई ए लिया। अब हमारा पर क्या है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि 3/3 है तो वी कैन अप्लाई 2 ऑपरेशन एट अ टाइम। तो फॉर द आइडेंटिटी इट शुड बी 1 0 0। ये ऑलरेडी 1 है, ये 0 है, तो ओनली 1 ऑपरेशन इज इन R2 प्लस R। हमने ऑपरेशन अप्लाई, फर्स्ट रो एज इट इज, दोनों को ऐड किया 0 2 + 3 5 -0 -2 1। We get this one. अब हमको क्या काम करना है, ये 1 बनाना है, ये 0 बनाना है। तो पहले इसको 1 बनाते हैं। अब इसको 1 बनाने के लिए फर्स्ट वे तो यह है कि हम 5 से इसको डिवाइड कर दो, पर जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। जबकि सेकंड ये है कि हम 5 में से 2 टाइम्स ये माइनस कर दे तो ये 1 हो जाएगा, बट उससे ये 0 गायब हो जाएगी। बट अगर हम इसको यहाँ यूज करें तो ये 0 हमारी एज इट इज रहेंगे। तो हमने क्या अप्लाई किया, इन R2 plus 2 R। उससे बेनिफिट हुआ, ये हमारी 0 को कोई चीज फर्क नहीं पड़ा। हमारा फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। अब हमारा पर क्या है, इसको 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस। अब हमने अप्लाई किया इन R3 प्लस 2 R। इससे हमारी जो जीरोस बनी हुई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। We get 0 0 1। अब द नेक्स्ट वर्क इज, हमको ये 2 0 बनानी है। हम 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा सकते हैं, बट यहां नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमने इन दोनों को यूज करना है, इन दोनों को यूज करना है। तो पहले हमने ये 0 बनानी है इन R1 प्लस 2 R। 5 4 10।
2। अब एक स्टेप रह गया कि इसको 0 बनाना। तो हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया इन R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R। फाइव माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, 10 माइनस 4 6। So we get I equal to A inverse A. So this is the inverse of this matrix A. तो in this way हम find out कर लेते हैं inverse of a matrix by elementary transformation. Same way में हम column operation भी apply कर सकते हैं. Okay, thank you very much.